नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आज हमारे साथ एक पैनल है एंड पैनल में जो स्पीकर्स हैं मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जो नए स्पीकर्स हैं मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करूंगी। जो हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं उनको मैं बाद में। हमारे साथ हैदराबाद से राकेश नायक जी है, चंडीगढ़ से राकेश अग्रवाल जी है, पुरी से सुरेंद्र जी है एंड हमारे अपने नटराजन जी फ्रॉम इंदौर। सो वेलकम एवरीवन। थैंक यू। नमस्ते। आज का जो विषय है ना वो हम लोगों को, हम सबको बहुत ज्यादा ट्रबल कर रही है। इट्स अबाउट द प्रोग्राम विच इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम 10th to 12th September एंड इट इज ऑन डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। एंड उसका जो लोगो है उसमें देखा जाता है कि दे आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग RSS पीपल, क्योंकि वैसा टाइप का पिक्चर दिया है एंड उनको उखाड़ फेंकना। बट देन आवर पॉइंट इज व्हाई हैज दिस गॉन आउट ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क राकेश नायक जी to speak on it and we would love to know what you want to say, sir. Yeah, thank you, ma'am. See, I think it's a very coordinated effort to bring down the ancient culture. And if you look at what is happening around the world, the indigenous cultures are being attacked. And, our Hindu Sanatan Dharma, which is one of the known continuously surviving indigenous culture, is actually very difficult to do away with. The very concept, the very reason why they are scared of us is because we are too much in number. One, we are ancient, we're surviving. It's orthodox as well as heterodox, and I think probably this is their battle of survival, and then they are using all tools at their disposal to try to bring it down. Well, that's my opinion, and there is a very concerted effort in all of these. If you look at everything has started in universities, involves students, involves activists, academicians, historians. So it's basically a story of deep state, trying to attack indigenous cultures, and then cultures like us, we are not very we are very tolerant. We are not very outwardly aggressive, so that actually helps them to actually pursue their cause. So that's what I think. If you don't counter it, it may embolden them further. Exactly. सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये ऐसा अचानक it has crossed a crescendo? It's actually for people like us who normally give them a lot of leeway. हमारे लिए भी ये बहुत irritating हो जा रहा है, ये बार हमारे ऊपर अटैक। एकदम सही बोल रही हैं आप। इन दिनों तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जैसा राकेश नायक जी ने कहा, ये एक कंसिडर्ड अटैक है पॉलिटिकली बाय द इकोसिस्टम्स एंड कल्चर पे है, वो तो साफ दिख रहा है। पॉलिटिकली क्यों? मेरे ख्याल से जो अपनी प्रोग्रेस हो रही है इंडिया की, उसको देख के लोगों के मन में भी एक आई है। पोस्ट 2014 is a big threat to many countries and to many societies. तो उस कारण से वो अटैक कर रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अटैक क्या हुआ और कौन कर रहे हैं, इस पे भी एक क्विक नजर डालें अपने। ये प्रेमवदा गोपाल का आपने पढ़ा होगा एक ट्वीट। Really, I'm at point where I would like to invite Western countries to block naturalization of Hindus, snatch their precious little H1Bs. सिखोस, ये क्या किया हिंदू ने वहां जाके काम किया, तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? कौन है ये प्रेमवदा गोपाल? नाम प्रेमवदा है लेकिन ज्वालामुखी की तरह बोल रही है। शी इज ए ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ डॉक्टर राधा कृष्णन, our former president. Oh my God, I didn't know her this. grandfather is Mr. S. Gopal, who wrote a biography of Mahatma Gandhi and of Dr. Radhakrishnan also. And do you know what he writes about his father? The first sentence in his book on the biography of Radhakrishnan ji, the first sentence is in September 1888.
My father was born a bastard. Disgusting. It is there. It is book there, आप पढ़िए, ऐसा है। लेकिन इनको पढ़ के और ये प्रेमदा का पढ़ने के बाद तो मुझे लगता है कि शायद वो 88 नहीं, उसके बाद जितने उस परिवार में हुए हैं सब शायद उस श्रेणी के हुए हैं। आई एम सॉरी टू यूज दिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, but these people have to be answered in the same way. Who is she to decide and tell about everybody else like that? ये कोई तरीका है? अपने लोग भले आदमी बनने की कोशिश करते हैं, अपने बात करते हैं कि let us be nice people, let's be within courtesy and all, लेकिन ये तो जब जिसको देखते हैं उसके कपड़े उतारते होते हैं, ये क्या मतलब होता है? क्यों हो रहा है ये हिंदुओं पे अटैक? इसमें मेरा जो एक छोटा सा कहना है कि because Hindus have no political, financial and intellectual backing to counter the propaganda. हम लोग हमेशा जो आता रहा सहते रहे, अपने रामायण पढ़ते, रामचरितमानस साहब तुलसीदास जी की खोलिए, पहले 50 पेजेस में कम से आपको 10 दोहे मिलेंगे कि जो भाग में लिखा वो होगा, उसको सहते रहो। तो वो करके अपने लोगों को ऐसा एक सैनिक वाला बना दिया कि अपने लोगों को अपोज करना नहीं जानते। गीता के कृष्ण को हम कब याद करेंगे? कब हम आतताइयों को मारने के लिए तैयार होंगे? कब हम शस्त्र उठाएंगे? अब जो इकोनॉमी की बात बोल रहा था, मैं उसमें लिया हूं कि उसके पहले क्यों नहीं बोलते थे? एक प्रश्न उठ सकता है कि आज पहले क्यों नहीं? पहले बेचारा गरीब देश था हिंदुस्तान, उस पर कौन अंगली उठाता? हमारे राजस्थान में कहावत है, भगवान के कांटो लागे सार करे सब कोई, निर्धनियों को में पड़ गयो खबर करी ना कोई। तो निर्धन हिंदुस्तान था, एक छवि बनी हुई थी कि विदेशों में प्रधानमंत्री भीख का लोटा लेके घूम रहा है, तो उसके ऊपर कौन अटैक करता, क्या होता? 2014 के बाद जो हुआ है आपसे छिपा हुआ नहीं है। ये दो मिनट, आधी मिनट लूंगा। अपने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपनी 620 बिलियन के ऊपर इज 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। RBI gold reserves are rising, not only because gold prices are rising, but RBI is buying new gold also. Now all these things and the progress that is happening in India, whether opposition believes or not, लेकिन money being spent छिपा हुआ नहीं रहता है, समझते वो भी हैं, लेकिन they tolerate it, अनदेखी करने की कोशिश करते हैं। कोई हंगर नहीं है देश में। एक जमाना था जब आपको PL 480 के अंदर गेहूं मंगाना पड़ा था, मुफ्त में मिला था अमेरिका से दान, रोज एक जहाज हिंदुस्तान में आके लगता था अनाज का, गेहूं का। एंड आई रिमेम्बर माई गुड फ्रेंड लेट हिरन मुखर्जी ने फूड मिनिस्टर के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा, इज दिस अ फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स? तो उस जगह से आज अपनी सब अनाज की गोदामें भरी हैं। 80 करोड़ लोगों को 2 साल से, करीबन 2 साल से मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। तो उससे क्या लोगों को तकलीफ नहीं होगी? जो अपने दुश्मन है, चाहे जो अपनी प्रोग्रेस नहीं चाहते हैं, उनको दुश्मन नहीं होगी? तो वो ये हल्ला मचा रहे हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। कुछ देशों को भारत इसलिए अच्छा लगता था कि हमारे से डिफेंस वेपन खरीद रहे हैं, अपने खरीदते थे प्लेन्स वगैरह और जहाज। अब यहाँ वो डिफेंस फैक्ट्रीज बैठ रही हैं, तो सब खलबलाए हुए हैं। तो ये जो हो रहा है उस कारण से हो रहा है। मेरे ख्याल से अपने को जो करना है कि वी हैव टू बी अटैकिंग अगेन, वी हैव टू आंसर देम इन देयर ओन लैंग्वेज एंड नॉट बी गुडी गुडी बॉयज। दैट्स ऑल आई हैव टू से एट द मोमेंट। ओके, राकेश अग्रवाल जी, अब हम चाहते हैं कि आप भी बताइए, आपको क्या लगता है क्यों ये सब क्यों रहा है? अचानक ही एकदम मतलब बहुत बढ़ गया है। मुझे क्या लगता है, इन्होंने खुद एक टर्म इजाद की है, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुइज्म। दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदुत्व हिंदी का वर्ड है, हिंदुइज्म इंग्लिश का वर्ड है। ये लोग क्या कहते हैं कि हिंदुइज्म अच्छा है, हिंदुत्व बुरा है। हिंदुत्व के जो फॉलोअर्स हैं ये उनको एज अ टेररिस्ट प्रोपेगेट कर रहे हैं, लेकिन ये आज तक ये नहीं बता पाए कि जो हिंदुत्व के फॉलोअर्स हैं या जो
मेरे हिसाब से हिंदुइज्म के भी फॉलोअर्स हैं, आज तक उन्होंने क्या टेररिस्ट की एक्टिविटी की है? ऐसा कुछ नहीं किया। ये हमें लेकर ये लोग क्या कर रहे हैं कि हमें बदनाम करना चाहते हैं। अभी पहले बदनाम कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि नहीं जी हमने हिंदुत्व को डिसमेंटल करना है। भैया आप तालिबान को डिसमेंटल करो, आप कम्युनिज्म को डिसमेंटल करो, वो आप देखोगे ही नहीं उसको, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसको छुपा रहे हो और हमें फ्रंट पे करके हमें बदनाम कर रहे हो। हिंदुत्व में मेरा अपना मानना है, हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों कुछ भी नहीं है। असल में चीज है सनातन, ये हमारी पूजा पद्धति है। हमें ईश्वर की पूजा करनी है अपनी इस पूजा पद्धति के अनुसार, ठीक है। इस पूजा पद्धति के ऊपर अगर कोई अटैक कर रहा है तो हम अपनी पूजा पद्धति को उससे बचा रहे हैं। और अगर इतना करने भर से अगर हम टेररिस्ट हैं तो ये उनकी सोच है, ये उनका माइंडसेट है। हमारे बारे में कहा जाता है, अभी आप पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पे आपने देखा होगा कि तालिबान और हिंदुत्व वाले एक ही जैसे हैं। कैसे हैं भैया? एक हमने किसकी टेरिटरी के ऊपर जाके जबरदस्ती अटैक किया? हमने कब अंडर एज विमेन को या बिलो 40 विमेन को हमने अगवा किया? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने किसी का मस्जिद, किसी का ये चर्च के ऊपर हम अटैक करने नहीं गए। हम कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं अपनी पूजा पद्धति को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप अपनी पूजा पद्धति को मानने के लिए स्वतंत्र हो। मैं अपना कुछ आपके ऊपर नहीं थोपूंगा, आप अपना कुछ मेरे ऊपर नहीं थोपोगे। इतनी तो बात है। वो उनका साथ दे रहे हैं। सॉरी राकेश जी, आपके साउंड में ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। साउंड में प्रॉब्लम? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा। ठीक है साउंड? नहीं, थोड़ा सा फिर भी कट रहा है। हाँ, कट रहा है। हाँ, कट रहा है। चलिए आप नेक्स्ट स्पीकर दीजिए, मैं तो सेटिंग करता हूँ। ठीक है। नटराजन जी, व्हाट इज योर ओपिनियन? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई ऑल दिस नॉनसेंस इज गोइंग ऑन? See, probably there could be 2-3 reasons. We can only arrive at conjectures. One is that these people are getting probably feeling that they're getting increasingly irrelevant. They were setting the narrative till a short while ago. Till about 2014 तक उनका narrative set होता था, वो लोग चलाते थे और उनकी मनमानी चलती थी, ठीक है। अभी क्या है कि इट इज नॉट हैपनिंग दैट इजीली। हो रहा है, मीडिया वगैरह में काफ़ी सारा नैरेटिव वगैरह वही सेट कर रहे हैं, फिर भी इट इज ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो दे आर गेटिंग अफ्रेड। नंबर 2 पॉसिबली is that one or two globally very rich and powerful people, they are funding the entire thing to keep the kettle boiling so that they don't go out of relevance. Okay, राकेश अग्रवाल ने तो बता दिया कि the one side of the Hindu dharma कि we never attacked, हमने कभी we were not aggressive like other countries. We did not go to destroy other religions or conquer other lands. We did go, but never with an intent to convert. We had a very specific purpose of exploring the trade purpose, अगर आप देखेंगे, and that's how everything spread. And they are very well documented. Okay, so that being the case, इनको एक डर का माहौल है कि what will happen to their उनकी रोजी रोटी. Okay, they had to prove to their masters that they are irrelevant. हालांकि within India they are largely irrelevant. Who cares about them? We are bothered. The ordinary Indian is bothered about day-to-day living. Okay, getting their
lot better. That is what is more relevant to them. और इधर आकर yes, they are doing it, but the good thing is lot of universities जिनका लोगो उधर आ गया था वो से भी हट रहे हैं from that thing. So that goes to show that the power of the Hindus uniting is showing up, and this is what exactly they are afraid of. And in a way, I'm thankful to these people. कम से कम इसी बहाने हम लोग यूनिट हो रहे हैं. Right. Absolutely. इसी बहाने तो at least we are getting united. We are becoming aware that if you keep quiet, what could happen to you? And as Mr. Nayak said, okay, the fact of the matter is that they will try their level best to go on preaching, Gobelian theory, that 100 lies repeatedly, it becomes the truth. Okay, but the Sanatan Dharma is so ancient. इनको तो पल्ले भी नहीं पड़ेंगे. It is beyond them. इनको, their narratives related to only two things. Their narrative is related to only two things, that Taliban is equal to RSS or RSS is equal to Taliban. That is their understanding. Very menial level of understanding. If I'll stop here, because if I tell more, my remarks like in Parliament, it will be expunged. Yeah, actually it blood boils. मैं एक point करके then I will ask नायक जी to speak. अगर आप RSS को देखते हैं, हर कोई RSS को अटैक करता है, मगर जब केरला में फ्लड्स आई थी ना, तो ये RSS गए थे हर घर में काम करने के लिए. कहीं पे भी आई स्टिल रिमेम्बर एक प्लेन एक्सीडेंट हुआ था दिल्ली में, एंड द कंडीशन ऑफ द बॉडीज वाज वेरी बैड. No one had actually ventured over there to take the bodies and clean up the area. RSS था वहां पे. आप अगर आज फ्लड बोलिए, ड्रॉट बोलिए, जो भी बोलिए, कोरोना में कितने सेल्फलेसली RSS के वर्कर्स ने काम किया. तो कहीं ना मुझे गुस्सा तो आता है, बट आई फील वेरी सैड कि एक एसोसिएशन जो कि सेल्फलेसली काम करता रहता है, क्यों उनके साथ क्या प्रॉब्लम है. फिर मेरे एक ही बात आता है, प्रॉब्लम ये है कि these are actually the nationalists. RSS is doing whatever it can do to take the country forward, and बाकी जो थे वो तो 1 रुपया भेजा तो 15 पैसा पहुंचता है लोगों तक, वो ब्रिगेड है. तो ऑब्वियसली फेक नैरेटिव आप अगर रखेंगे कि भाई हम नेशनलिस्ट है, तो वो तो कटने ही वाला है, वो तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. Yes, Nayak, yeah. I got only one point before passing the baton to Mr. Rakesh Nayak. You see, one very common statement that we make in our homes, which is very common, कि हम बोलते रहते हैं कि RSS is not talking about itself, the good work that it is doing. It is spread by others, okay, who see it in action. ठीक है. पर जनरली अगर आप देखेंगे इन अवर सिस्टम, इन अवर वे ऑफ, जो हमको कहा जाता है कि इफ यू डू विद द राइट हैंड, इफ यू गिव विद द राइट हैंड, द लेफ्ट हैंड शुड नॉट नो. True. That's what we have been taught, and RSS probably is following the same thing. Just as pointed that, over to Rakesh Nayak ji. मेरा थोड़ा points है. I have a few points. See, I personally believe it's not just isolated to Hindu and India. This is a global trend. The deep state is taking over. There's a very prominent theory that runs around. It says, persecute, ridicule, syncretize, and convert. The agenda is that. Persecute, simply first persecute. We have gone through persecution stage. We have gone through the ridicule stage. They'll try to syncretize and dilute us.
and then finally you accept the conversion. That's exactly what India is facing. Now, why you are seeing it on a larger scale? It's only because of the the effect of the social media, the network effect of the social media is actually blowing it up. But actually, it was there from the beginning. To convert a population of about 1.3 billion, it takes a lot of effort, money, funds, and a very cohesive action, which I think is now gaining some traction. Now, there is a very important, proverb which Swami Vivekananda had told. He said, every man going out of the Hindu pale is not only a man less, but the enemy the more. So, the reason why, Hindus and, Sanatana Dharma, I refuse to call it as an ism, because isms are always negative. They have a negative connotation. It is not Christianism. It is not Islamism. It is always Sikhism, Hinduism, Jainism. It's Judaism. This is a very concerted plot by them. So what has happened is they synchronize you, they dilute you. This Ganga, Jamuna, Tehzeeb and all this nonsense. These are all very the crap things. We are an ancient civilization. We are most modern. Probably, we always think that we have come from the gods. Now, the second most reason why they are doing this is, just imagine this. It's all about economy. 350 million people, United States, the superpower, or you may not want to call it the superpower, but very powerful country, one of the large, or probably the largest economy in the world, with just about 350 million population. Even if you discount 40% of their population as poor, they are just about 250 million. Now take 1.5 billion Indians. We are a slow inertia-based economy. If you have even 500 to 700 million coming out of the poverty, you can imagine what force we will be. A single most homogeneous group, not bound by any rule-based order, not jihadi, very, very pluralistic. I even refuse to call ourselves as democratic. We are pluralist. This is the only place which has given shelter to all the other religions. Now, this force gains momentum, gains prominence. It's a very, very powerful force to take down, and impossible rather. Now, there are certain reasons why they want to do this also. Our dependence on we have been, over the period of 75, 80 years, we have got a lot more independent on our own capabilities. Food was one of the major ones. You have water, electricity. We have a little dependence on oil. Now we are getting there too with the policies of the Prime Minister and BJP. They are always very pro-development. Now, if you look at it, the next 10 years is going to be very critical. I basically feel whether India wants it or not, it will become a superpower. Superpower not in the sense of going and bombing people, but superpower in the sense of soft power that we have, the Hindu culture that we can propagate, the kind of thinking that we bring into the world to say everyone can live. If you look at the problems of the world, majority of them are caused by the superpowers. Every piece of, Mr. Surendra may know this, if every place of an issue on the planet is by the imperialist British or the US in the present day. You name one problem India has ever caused to anyone on the planet. So, if that such a kind of an entity becomes powerful, which the Prime Minister is enabling, I mean, I differ with him on many reasons, but then I basically feel he's probably a new kind of a saint that has come around to actually bring this renaissance. It's a renaissance of Hinduism, which they are scared of. Yeah, absolutely. राकेश जी, आप बोल रहे थे, आपका वो, प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए. बिल्कुल, जैसे भाई साहब ने, नायक साहब ने बोला है, ये सनातन धर्म का पुनर्जागरण है. ये काल जो है पुनर्जागरण का काल, और जो ये डिसमेंटलिंग का इशू लेके चले हुए हैं लोग, इनको दिक्कत इसी बात से कि हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग पुनर्जागृत क्यों हो रहे हैं. हमें नवजागरण की जरूरत नहीं है, हमें पुनर्जागरण की जरूरत है. उनको दिक्कत इस बात से, हम अपनी आइडेंटिटी के ऊपर वापस आ रहे हैं, हम अपने मंदिरों को रिक्लेम करने की बात कर रहे हैं. उनको इसी चीज से दिक्कत है. अगर आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी कोई हिंदुस्तान, हर भारतवासी के कोई अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उस चीज से दिक्कत है. अच्छा काम भी कर रहे हैं, उससे दिक्कत है. कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना के खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं, उससे दिक्कत है. क्यों? दे आर देयर मास्टर्स. वो लोग इनके मास्टर्स हैं. हमें और उनमें
एक फर्क है, बहुत मोटा फर्क है। हम लोग अपनी मिट्टी के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग पैसों के लिए काम कर रहे हैं। जो उनकी तरफ रोटियां फेंक रहा है वो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग काम करते हुए अच्छे नहीं लगते। हमारा काम उनको इसलिए अच्छा नहीं लगता, इस करके हमारे को टैगिंग कर दी कि दे आर टेररिस्ट। जबकि आप बताइए कि आपने किसी नेशनलिस्ट को इवन एक छुरी भी लेके चलता हुआ दिखा आपने कभी? नेशनलिस्ट रखा है ना आपने कि नहीं भैया मुझे मेरी मिट्टी से प्यार है, मेरे देश से प्यार है, इतनी तो बात है। वो कहते नहीं जी हमारे ऊपर टैगिंग हर तरह की, नहीं जी ये तो टेररिस्ट हैं, ये तो ये कर देंगे, ये तो वो कर देंगे। हमने किया क्या है? अगर हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम उस चीज के भी दोषी हैं तो हम दोषी हैं। अगर आप उस चीज का दोष हमारे ऊपर लगा रहे हो, हम उस चीज के दोषी हैं और हम ये करते रहेंगे। हमें अपने समाज को, हमारे भारतवासी जितने हैं उनको बताना है कि भैया ये भारत हमसे है, इनसे नहीं है। हमारी विचारधारा हमारी मिट्टी से जुड़ी है, उनकी विचारधारा कभी रशिया से जुड़ती है, कभी चाइना से जुड़ती है, कभी जॉर्ज सोरोस से जुड़ती है। अब जो जॉर्ज सोरोस आज की डेट में बोलेगा कि नहीं भैया ब्रिटेन अच्छा नहीं है तो ब्रिटेन के खिलाफ हो जाएंगे, कल वो जॉर्ज सोरोस बोलेगा नहीं ब्रिटेन अच्छा है तो बोलेंगे ब्रिटेन अच्छा है। ऐसा नहीं चलेगा ना, जो अच्छा है अच्छे को अच्छा बोला जाएगा, बुरे को बुरा बोला जाएगा। इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंडिया कभी भी किसी भी चीज के अंदर अगर तरक्की करता है इनको उससे दिक्कत हो जाएगी। ये इंडिया को सपेरों का देश ही बनाकर रखना चाहते। इनकी दाल रोटी उससे चलती है, इनका ब्रेड एंड बटर उससे चलता है। आम इंडियन जब तरक्की कर रहा है इनका ब्रेड एंड बटर वहीं से कम होता चला जा रहा है। दिक्कत ये इस करके ये कभी हमारे को टेररिस्ट बता रहे हैं, कभी हमारे को अलग अलग नाम से। मैं जब से ये वर्ड सुना है डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, क्यों भैया किस लिए? हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप हमें डिसमेंटल करोगे? ऐसा हमने किया है? मैं अनअपोलोजेटिक, हमें हमारा कसूर बताइए, कसूर हमारा कुछ होगा तभी बताओगे आप। क्योंकि आपके मास्टर्स चाहते हैं कि ये लोग राइज ना कर पाए, इंडिया एज द कंट्री राइज ना कर पाए, तो इनको आपने इनके खिलाफ लिखना है, इनके खिलाफ आपने इस तरह के आयोजन करने हैं। ऐसे नहीं होगा। हम अच्छी रास्ते पे हैं, हम लोगों को जागृत करते हैं और ये हमारी जीत है कि इनको ऐसे प्रोग्राम करने पड़ रहे हैं। हम लोग हाँ, पॉजिटिविटी तो हर जगह पे है। हम अपने मोटिव की तरफ अच्छी तरह से जा रहे हैं, इसी करके इनको ये प्रोग्राम करने पड़ रहे, पहले नहीं करते थे। पहले नहीं करते। ये क्या नाम है जी? सुरेंद्र जी आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आपको मुझे एक चीज बोलना है कि हम अगर देखें ना स्पीकर्स को, अगर हम देखें जो कुछ स्पीकर्स का जो नाम आया है ये डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म में, वो सब हिंदू हैं मोस्टली और इंडियंस है। अब इसको ये लोग ये खुद कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप खुद ही के लोगों के, खुद ही के धर्म के, खुद ही के देश के दुश्मन बन के बैठे हो? हिंदुस्तान के इतिहास में भी आप देखिए कि हिंदुस्तान कभी तकलीफ पाया है तो अपने ही लोगों से पाया है। बाहर के लोग जब आए, अफगान और ये सब आते थे घाटियों से, तो इनको जब तक ये लोकल सहारा नहीं मिलता तो इतने आगे नहीं पहुंच पाते थे। यही मेरे पड़ोसी राज्य से मेरे को प्रॉब्लम है तो इसको आने दो, इसकी मदद कर दो तो मेरा कुछ बढ़ जाएगा। तो अंत में उसने खाया मुझे भी, लेकिन पहले मैं उसको निपट लूं तो हमारे लिए पुराना इतिहास है। और संख्या अपनी ज्यादा है हिंदुस्तान की, चाइना के बाद अपनी ही है, बराबर इनकी हो गए। तो अच्छे काम भी अपने करते हैं तो बुरे में भी अपने ही लोग निकलेंगे। और हिंदू की एक सबसे बड़ी जो मुझे कमजोरी लगती है कि अपन ने कभी अपने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए लड़ा नहीं। वो बदलना पड़ेगा। अपनी किसी भी भगवान की, देवी की तस्वीर देख लीजिए, हाथ में शस्त्र है। आज के हिंदू ने अपना शस्त्र क्यों छोड़ दिया? शस्त्र भी छोड़ दिया, शास्त्र छुड़ा रहे वो लोग कि मंदिर नहीं जाओ, ये सेकुलर बनो, ये बनो, वो बनो। शास्त्र वो छुड़वा रहे हैं, शस्त्र अपने अपने मन से छोड़ रहे हैं। तो एक हिंदू को जागना होगा। और कब वो समय आए कि अपने गर्व से बोल सके कि हाँ मैं हिंदू हूं। हिंदू को तय करना पड़ेगा कि हमें खत्म हो जाना है। और नहीं है भी आज जगह, तो आप देखिए जिस ढंग से आज बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, another 30 years
जब उन लोगों की 25-28% के आस वोटिंग स्ट्रेंथ हो जाएगी तो हिंदुओं के जब 70% वोट मिलेंगे तब आप उनसे लड़ पाओगे, अदरवाइज गवर्नमेंटें उनकी बनती जाएंगी। देन व्हाट? आज ममता जी खुश हो रही होंगी कि मैं इस तरह जीत रही हूँ, लेकिन इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। पहले डिमांड होगी कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा बना दो। माने शी इज राइडिंग अ टाइगर, एंड रिमेंबर whoever rode a tiger never got down. It went into the mouth of the tiger. Tiger had a laugh on its face, smile on its face. Yeah. तो हिंदुओं को जगना होगा। मैं तो एक यही रिक्वेस्ट करनी है मुझे समझ से। हाँ, अभी दोस्तों टाइम कंस्ट्रेंट है। मैं ये हमारा पार्ट 1 है, खत्म नहीं हुआ है, प्लीज वेट। अभी पार्ट 2 हम लोग भी इसको भी करेंगे। अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।